جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے اس دن جو اسلام آباد پولیس اور ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا جو کوآرڈینیٹڈ ریڈ تھا جو میرے گھر پہ کیا تھا، اس کو میں نے چیلنج کیا اور اس میں حکام سے عدالت نے رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ عدالت نے میرے گھر میں کسی بھی ایجنسی یا پولیس کی طرف سے گھسنے کو روک دیا ہے اور اس کے حوالے سے حکم امتناعی جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو احتجاج کے حوالے سے مقدمہ اسلام آباد پولیس نے درج کیا، اس میں کل میں نے اپنی قبل از گرفتاری ضمانت کرا لی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن میں مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں۔ بسرا صاحب کا مقدمہ جو ہے کلی ان کی واضح جیت ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں بعض دلائل سننے کے بعد 4 دنوں سے ان کے فیصلے کو اناؤنس نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے عملے کو یہ گزارش کریں گے کہ یہ جو بھی آرڈر کرنا ہے، لیکن اگر ہو جائے کوئی سوال ہو تو حاضر ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاملہ طے ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، صدر اعظم زرداری ہوں گے۔ ایک طرف پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے حکومت بنائیں گے، کیسے ہوگا؟ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے معاملات پہلے سے ہمیں علم تھا، الیکشن سے بھی پہلے، لیکن نون لیگ اور پیپل پارٹی، نون لیگ کے 17 سیٹیں اور پیپل پارٹی کی 6 سیٹیں، 23 سیٹوں سے یہ حکومت بنانے چلے ہیں۔ ذرا سوچنا چاہیے ان کو خود بھی۔ اور شہباز شریف صاحب چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ اگر وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھتے ہیں اور زرداری صاحب اس چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ صدر پاکستان بنتے ہیں، تو بین الاقوامی کمیونٹی میں کیا تاثر جائے گا، کیا احترام ہوگا۔ ہم روزانہ کہتے ہیں کہ سبز پاسپورٹ کی جو ویلیو ہیں گرتی جا رہی ہے، پاکستانیوں کی جو کرنسی ہیں گرتی جا رہی ہے۔ ہم اگر یہ حرکتیں کریں گے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، لوگوں کے دیے گئے مینڈیٹ کے ساتھ، تو ہمیں پھر نتائج کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ اگر یہ اس قابل ہیں کہ حکومت بنا بھی سکیں اور چلا بھی سکیں، تو اس چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ اگر یہ حکومت کرتے بھی ہیں، یہ جرم ہے۔ اور یہ قانون اور بالخصوص جو آئین ہے اس کی آرٹیکل 6 کے تحت، کیونکہ انہوں نے دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا ہے۔ آرٹیکل 228 کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ، فری اور فیئر الیکشن ہوں گے، اور جو انہوں نے قصداً نہیں کرائے، تو لہٰذا ایک بدنیتی پر مبنی انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے۔ جی سر جی بتائیے گا کہ جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی بھی مقدمے میں اٹھا لیا جاتا ہے، تو آپ نے کوئی کورٹ میں کوئی درخواست وغیرہ دائر کروائی ہے کہ آپ کا نام کسی ایف آئی اے میں ہو یا کوئی اور مقدمے میں ہو، کسی بھی جگہ سے آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ جی، آج ہی میں نے گزارش کی ہے کہ آج ہی یہ ریٹ پیٹیشن سماعت کے لیے مقرر تھی، اور جسٹس صاحبہ نے سماعت کی ہے۔ تمام اداروں سے رپورٹ طلب کی ہیں، جس میں میں نے جو ریسپونڈنٹس ہیں اس میں ایف آئی اے، آئی جی پولیس، سیکٹری انٹیریئر، نیب، ان تمام کو میں نے ریسپونڈنٹ بنایا ہے کہ اگر کوئی بھی انکوائری ایف آئی آر ہو تاکہ مجھے علم ہو، اور اس نوعیت کا یہ میرے اپنے ذات کے لیے 11واں مقدمہ ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم کرنے پہ مجبور ہوئے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب انہوں نے درمیان میں کوئی خفیہ مقدمہ دائر کیا ہو، اس کو جواز بنا کے گرفتار کر لیں۔ ہمیں گرفتاری سے ڈر نہیں ہے کہ جب بھی گرفتار کرنا چاہیں، لیکن ہمیں اغوا ہونے سے ڈر ہے۔ اغوا ہو کے یہ انکار کریں گے کہ کبھی ہم نے ان کو اٹھایا ہی نہیں ہے۔ جس طرح یہ رات کو 1:30 بجے میرے گھر مٹائی تو نہیں لائے تھے، سارا دن ادھر پھرتا ہوں، لیکن چونکہ دن میں لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ، کیمرے ہیں، موبائل ہیں، تو اس لیے انہوں نے پھر کل جب آنریبل محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں نے یہ کہا، تو عدالت نے بھی کہا کہ گھروں میں اگر رات کو ڈاٹے باندھ کے یا نقاب لگا کے آپ گھسیں گے تو اس کے بعد اس کا ریئیکشن، رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میرے گھر میں گھسنے والے کسی شخص کو رات اندھیرے میں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے میں اس پہ فائر ماروں۔ تو لہٰذا اب میں نے اپنی سیکیورٹی کے خاطر خواہ بندوبست کیے ہیں۔ وارنٹ دے کر کوئی آئے گا تو آئے گا، اور اگر بغیر وارنٹ کے کوئی آئے گا تو بے شک وہ ہمیں مارے گا، لیکن ہم کوئی آرام سے ان کو گھر
में अंदर घुसने नहीं देंगे। शेर अफजल मरवत साहब, ये बताएं कि इमरान खान ने आम माफ़ी का ऐलान किया फतह मक्का के तर्ज पे, तो ये बताएं कि 9 मई रिजीम चेंज के बाद जिन अफसरान ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात बनाए, बेशुमार खवातीन अभी भी जेलों में, तो उनके हवाले से आपका क्या लाए अमल होगा तहरीक इंसाफ का? तहरीक इंसाफ जो है और बैशियत पाकिस्तानी और बैशियत एक मुसलमान के, हम किसी इंतकामी सियासत पे यकीन ही नहीं रखते हैं। अगर पहले भी कोई इंतकामी सियासत हुई है तो मैं बैशियत वकील उसकी मैंने हमेशा मजम्मत की है। रूल ऑफ लॉ यही है कि अपने दौरे इक़्तिदार में अपने बदतरीन सियासी हरीफ के साथ आप कोई ज्यादती कर ही ना सके। खान साहब बार बार इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं। जिन हुकाम ने PTI के लोगों के साथ ज्यादतियाँ की, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, कतई नज़र इसके कि इन्होंने किसके ख़िलाफ़ किया, असल अमर ये है कि इन्होंने ऐसा करके ख़ुद निज़ाम की कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठाया। ये एक दफ़ा कर सकते हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने एक नहीं दर्जनों के हिसाब से नाजायज़ इक़दामात उठाए। तो लिहाजा निज़ाम और कानून ये तकाजा करता है कि जिन्होंने सियासी वजूहात की बिना पे अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, वो लोग अपने आप को कानून के अंदर अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं। अगर कानून है तो कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसी माफ़ी हो कि जी आपने जो किया, इन्होंने बड़े घिनौने, बड़े ही हीनियस जराइम का इर्तिकाब किया है, लोगों को कत्ल किया है, शहीद हुए हमारे वर्कर 9 मई को 25 वर्कर। ये नहीं हो सकता है कि जी वो उनका खून हम माफ़ करें, ना खुदा माफ़ करता है, ना उनके वरसा को ही आखें कि दियत की रकम लें। फिर लोगों के कारोबार तबाह किए हैं। एक DPO था चरसदा में मैं गया तो इसने इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे वर्करों से 6-7 करोड़ रुपए इनटे हैं। अब ये माफ़ी हो सकती है जब तक कि उस शख्स से ये रकम निकलवाई न जाए। तो लिहाजा जिन लोगों ने अब ये जो टिकट पास करने के चक्कर में पेशावर में रिटर्निंग अफसर ने एक अफगानी को 7 करोड़ लेके जितवा दिया। अब ये तो उनका भी बंदोबस्त नहीं है जिन्होंने ये कराया है। 3-4 लोग जो हैं सिर्फ पेशावर में पैसे दे के और उन्हें लेके उनको पास कराया है, और ये काम कराची में भी हुआ है। लिहाजा ये जराइम किस तरह काबिल माफ़ी हो सकते हैं? अच्छा, मरवत साहब, नून लीग कहती है कि हमारे साथ भी धांधली हुई है, हमारे बड़े नामी गिरामी जो सियासतदान हैं वो हारे हैं, और वो कहते हैं कि हमारे साथ KPK में धांधली की गई है। आप कहते हैं हमारे साथ पंजाब में धांधली की गई है, आप कहते हैं हमारे साथ इस्लामाबाद में भी धांधली है, तो वो आपके खिलाफ भी कहते हैं कि जी हमारे साथ KPK में भी धांधली है। जी, KPK में तो इनके कुल 7 उम्मीदवार खड़े थे 44 की सीटों पे, इसमें से 2 ये जीत चुके हैं बकौल इनके, 5 रह गए हैं। उसमें इनका एक उम्मीदवार मेरे हलके में था और उसने 43 वोट लिए हैं। तो अगर धांधली हुई है तो कोई आके इलेक्शन कमीशन में कोई पिटीशन दायर कर देते। एक भी पिटीशन नून ने दायर नहीं की है, माँ सिवाय मानसेरा का, जहाँ शहजादा गिस्ता सब जीता है, और नवाज शरीफ ने दरख्वास्त दी है कि रिकाउंट कराएं, और रिकाउंट का बंदोबस्त करने के लिए ये वहाँ पे वोट प्रिंट करा रहा था लाहौर में एहसान, जो इनके पार्टी का ऑफिस बियरर है। तो लिहाजा वही प्रिंटेड वोट जो है रिकाउंट से पहले तेलों में डालने थे और इसको जितवाने का प्रोग्राम था। मरियम नवाज ने पंजाब जो वज़ीर आला पंजाब हाउस है उसकी सफाइयाँ शुरू करवा दी हैं और कुर्सी पे बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ब्यूरोक्रेसी अंडर काम कर रही है और कहती है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो भी तनकीद करेगा उसको कानून के कटहरे में हम लाएंगे। मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये अप्रैल 2022 के बाद से लेकर आज तक इन्हीं की हुक्मरानी है। ये मोहसिन नकवी, ये काकड़, ये शाहजी जो KP में बैठा है, या जो जज साहब सिंध में बैठे, ये सारे तो सिर्फ और सिर्फ स्टूजीज है। ये तो इनके हरकारे हैं। इन्होंने इसी दौर में हमारे साथ इन्हीं निगरानों के ज़रिए यही मजालिम का सिलसिला जारी रखा है। मरियम नवाज अपनी सीट हार चुकी है सूबाई असम्बली की, नवाज शरीफ लाहौर की सीट हार चुका है। ये कहते हैं हमने हुकूमत करनी है। अब ज़बरदस्ती का तो कोई इलाज ही नहीं है। राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि हम PTI वोटर को सलाम भी करें तो आगे से जवाब नहीं देते, इस तरह की शांत नहीं करता। राजा रियाज वो मोटा सा
अपोजिशन लीडर थे जो लीडर अच्छा वो जो लीडर थे अपोजिशन के, हाँ जी, अच्छा बहरहाल वो भी मेरे ख्याल में बढ़ गया है, हाँ हार गया ना, हाँ बहरहाल ऐसे लोगों के माथे पे जो है ना उनकी जिल्लत लिखी होती है। इसने हारना ही था, ये क्या अपोजिशन लीडर था और ये नून में शामिल हो गया। बहरहाल छोड़े, ये अब गुमनामी में पीटीआई की हार के ऊपर नासिर मदनी जो है वो बड़े चुटकुले छोड़ा, बड़े मजाही अंदाज में तनकीद करता है, आप कुछ कहना चाहेंगे? कौन है? नासिर मदनी, मस्जिद वाला, वो किस चीज के मस्जिद वाला? वो जो कहते हैं ये मिन मस्जिद, मौलवी साहब। मौलवी नासिर मदनी सर बड़ा मशहूर स्कॉलर है, बड़ा आलम दीन भी है। स्कॉलर है? जी जी, वो कहता है मैं स्कॉलर हूँ, बड़ी वो महफिलें उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है सर। नहीं, वो हमारे खिलाफ बातें करता है। जी जी, कहते हैं कैसी तब्दीली आई है, कैसा नून लीग ने दिया है, इस तरह की वर्डिंग यूज करते हैं। चलें इसको भी देख लेंगे हजरत को, जरा यूट्यूब पे जरा चेक कर लेते हैं कि क्या शख्सियत है, तो जवाब भी दाग देंगे। और साहब आपका पहले भी हमने देखा कुछ इस छापे में भी नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ हुई, पहले भी करके रहा क्या नुकसान तो चले आपके बहुत हुए, लेकिन एक आप तो मुलाजिम को भी लेके थे, उनका क्या पता चला आपको? मुलाजिम अभी तक अगवाशुदा हैं। इस हवाले से थाना मारगला में मैंने अगवा की रिपोर्ट की है। घर में घुसने पे मैंने 3 लोगों पे दावेदारी की है, IG इस्लामाबाद, SP CTD, SSP CTD और SSP ऑपरेशन। और इसके अलावा जो इनकी ईमा पे ये काम हुआ है उस शख्स का भी मुझे नाम का पता चल गया है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और बेसिकली ऑपरेशन उनकी ईमा पे हुआ है, ये नई कूद आई है। और इस हवाले से मैं जो उनके वो काम हैं एक लेटर लिख रहा हूँ, उन शख्स का नाम भी मैं बता रहा हूँ और मैंने अपने ख़ानदान में और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास एक वीडियो बनाई है कि अगर मैं गायब हुआ, मुझे कोई नुकसान हुआ तो वही कर्नल साहब जिम्मेदार होंगे। शुक्रिया। थैंक यू।